बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों का चैप्टर चल रहा था, ये पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा था। और पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताया था वो चीज़ जो फ्रैक्शन में लिखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नंबर फ्रैक्शन में लिखा गया है, ये आपको जो नंबर नज़र आ रहा है, ये जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा ये नंबर प्रॉपर है या ये नंबर इम्प्रॉपर है। तो अगर ये ऊपर नंबर पड़ा होगा तो फिर ये आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर है या ये इम्प्रॉपर है। ओके, तो ये मैंने देखा, ये नज़र आया, तो ये मैंने लिखा है ये 1/2। तो 1/2 में ये जो 2 है वो स्मॉल है, इसलिए ये प्रॉपर है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5/2 है और 5/2 छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो इसका मतलब है दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी मेड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देयरफॉर वी कैन make it proper by dividing. So 2 divided by 5 is equal to 2 to the 4, and this is equal to minus, and this minus give us 1. So how to write our improper fraction into proper fraction? So for this we are using this formula, answer plus remainder divided by divisor. Our answer is equal to 2, so 2, this is our 2, and plus what is our remainder? Remainder is equal to 1, so there I write 1. And what is our divisor? Divisor what? 2, therefore I write this number divided by 2. Now our fraction is a proper fraction. So every improper fraction can be made into proper fraction. Okay, now we are moving towards the proper fraction in case of variables. If we consider variables for the proper fractions, now for variable for proper fraction is same, but we in variable we consider their powers. If power is small in numerator, then we say fraction is proper, otherwise fraction is improper. Now here x power 2, here x power 2, here x power 1, and here x power 2, therefore fraction is improper. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे x की पावर 2 है और ये डिवाइड में x की पावर 1 है, तो इससे बड़ी नहीं है. इट इज़ नॉट स्मॉलर, द न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज नॉट स्मॉलर, सो देयरफॉर इट इज़ improper fraction. To make this fraction proper, for this we divide. So x plus 1 divided by x square, divide x time, we get x square, we get multiply with this number x, we get x square plus 2, then minus this number, we get minus x, again multiplying with minus 1. So after division we can write answer. What is our answer? This number is our answer. So answer can be written here. And what is our remainder? Remainder is equal to 1. And what is our divisor? Divisor by x plus 1. Now this fraction is a proper fraction. Okay, now we are moving towards our rules for the partial fraction. There are basically 3 rules for partial fraction. Number 1, in division the element are distinct. If element are distinct, then we can use the method which is of one type, which is a divided by x plus 1, and similarly b divided by x minus 1, and similarly c divided by x 1. These are not repeated, these are distinct. If they are repeated, for example x plus 1 whole square, x plus 2 whole cube, both these number are repeated. And when the number are repeated, we make the partial fraction in the form of x plus 1 whole square. If there is x plus 1 whole square, we write x plus 1 whole square and then x plus 1 whole power 1. If there is a cube, then we write x plus 1 cube
एक्स प्लस टू क्यूब, एक्स प्लस टू स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू वन। तो अगर वन तक आना है अगर क्यूब हो तो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो देयर इज थर्ड टाइप विच कंटेन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म। if there is x square, then this form is known as quadratic form. For quadratic form we can write number in multiplication as ax plus b and cx plus d. Okay, now we are doing example number 1. Solve the partial fraction. Now we are going to solve the partial fraction. Now writing this number in by using partial fraction, we are going to solve this example via Kramer rules and as well as elimination method. So using definition of partial fraction, we can write these number because these are distinct, so we can write in the form of a over x plus 1 and b over x plus 2 and c over x plus 1, x minus 1, x minus 2. Now multiplying this number with a, with b and with c, multiplying, if we multiply with this number, this will get the form of this, and if we multiply with v, if we multiply with c, if we multiply with a, you can see a x plus 1 is cancelled with x plus 1, so the remaining numbers are x minus 1 and x plus 2. सिमिलरली b के साथ अगर आप इसी तरह कैंसिल करेंगे तो x माइनस 1 ये x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर बच जाएंगे। इसी तरह x प्लस 2 वाला नंबर x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये नंबर बचेंगे। अब इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया। अब क्या किया, a के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, उसको b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसको c के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर वाले नंबर इकट्ठे लिखे, प्लस और x कॉमन लिया, जो बाकी नंबर बचे थे वो लिखे। एक तो a है x के साथ और एक 3b है। इसी तरह प्लस अब जो बाकी नंबर बच गए हैं वो लिखने हैं, तो बाकी नंबरों में से बच गए -2a लिखा और इसके बाद आर ए प्लस 2 भी लिखा और माइनस सी लिखा। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशेंट, अब हम क्या करेंगे, कोफिशेंट कंपेयर करेंगे। अगर कोफिशेंट कंपेयर की जाए तो आपने देखा कि जहाँ पे x की पावर 2 थी वो वाला नंबर कंपेयर किया तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जहाँ x की पावर 1 है उसको कंपेयर किया तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, और अगर x0 को कंपेयर करेंगे तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये नंबर, अब हम इसको क्या करेंगे, राइटिंग दिस नंबर इनटू आवर मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये मैंने लिखा, पहला नंबर है a के साथ 1, b के साथ 1, c के साथ 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 1 1 एंड एट द एंड इट वाज 0, सो इट इज रिटन एज 0। सिमिलरली then there is at the end 1 and a containing 1, b containing 3 and c, there is no c, so c is equal to 0। सिमिलरली अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, अब हम इसके ऊपर क्राइम रूल लगाएंगे। मैंने सपोज किया कि ये वाला मैट्रिक्स x के बराबर है, तो क्राइमर रूल में फिर हम जो मैट्रिक्स लेते हैं उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो डिटरमिनेंट में हमने पहली रो को फिक्स किया, तो पहली रो को फिक्स किया तो पहली रो को अगर आप फिक्स करेंगे, देखिए आपने पहली रो को फिक्स किया, ये पहली रो फिक्स होगी। अब आप लोगों के पास पहली रो में पहला एलिमेंट 1 था, आप इसको गायब करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और अगर आप दूसरे नंबर पे इसको गायब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 माइनस, और तीसरे नंबर पे अगर आप इसको गायब करेंगे इसको, तो आपके पास आ जाएगा 1। अब अगर आप इस तरह करें, इनको आपस में अब मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -3 आ जाएगा। माइनस डालने के बाद अब आप अगले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा 1, और माइनस डाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, वो 0 लिखा हुआ है।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। अब आप इस तरह करें, इन माइनस डाला, दरमियान में माइनस होना चाहिए था तो मैंने प्लस लिखा हुआ है। क्यों प्लस लिखा हुआ है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6 आते हैं। -6 विद दिस माइनस इज इक्वल टू प्लस, सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू +6। तो अब इनको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट का आंसर आ रहा है मेरे पास 6। अब मैं ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ, एक्स ए का मतलब ये है कि ये वाला कॉलम उठा के इसमें रख देंगे ए की जगह। तो ये इसमें नहीं, इसकी जगह, ये इसकी जगह अगर आप रख देंगे ये वाला कॉलम उठा के तो ये एक्स ए बन जाएगा। तो मैंने बिल्कुल ऐसे किया है, वो वाला कॉलम उठा के मैंने यहाँ पे रखा है। तो जैसे मैंने उस कॉलम को उठा के इधर रखा है तो ये मेरे पास आ गया फिर एक डिटरमिनेंट बन गया। और डिटरमिनेंट को उसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया था कि आपने इसको फिक्स किया, फिक्स करने के बाद पहले को आप गायब करेंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। अगर आप दूसरे को गायब करेंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। और अगर आप तीसरे को गायब करेंगे तो आपके पास ये वाला नंबर बच जाएगा। तो अगर अब आप इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म बना लेता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म बन गई, और आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर 3 आ गया। अब आप चाहते हैं कि एक्स बी का आंसर फाइंड करें, तो एक्स बी का आंसर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ए के पास वापस जाना है। यहाँ पे आप ए के पास वापस आ गए, ये आपका मैट्रिक्स है। अगर आप बी का आंसर फाइंड करना चाहते हैं तो इसको उठा के बी में रख दें, ये सारा बी है। अगर आप इधर रख देंगे तो ये आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो एक्स बी आ जाएगा। सो अब मैं एक्स बी मैट्रिक्स की तरफ चलता हूँ। तो अब ये हमारा एक्स बी मैट्रिक्स है। तो एक्स बी मैट्रिक्स में आपने क्या किया, एक्स बी में वो बी को उठा के इधर रखा, वो आखिरी जो कॉलम था उसको उठा के इधर रखा है। अब ये आपका एक्स बी मैट्रिक्स बन गया। अब आपने क्या करना है, इस वाली रो को फिक्स करना है। ये रो आपने फिक्स कर दी और पहले को गायब करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। अगर आप दूसरे को गायब करेंगे, अगर आप इस दूसरे वाले को गायब करेंगे तो आपके पास ये वाला नंबर बन जाएगा। इसी तरह अगर आप तीसरे को गायब करेंगे तो आपके पास ये, तीसरे को गायब किया तो देखें 1 1 बन रहा है और -2 0 बन रहा है, तो 1 1 -2 0 बन जाएगा। तो अब आपने इनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने देखा कि आंसर आप लोगों के पास 1 आ रहा है। अब अगर आप एक्स सी फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स सी किस तरह फाइंड होगा, आप अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के पास वापस जाएंगे। ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, हम इसके पास वापस आ गए हैं और फिर क्या किया है, इसको उठा के आपने सी में रखना है। ये सी है तो ये उठा के सी में रखेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो एक्स सी बन जाएगा। तो ये एक्स सी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ये मैट्रिक्स हमने इसी तरह बनाया है, ये वाला मैट्रिक्स हमने इसी तरह बनाया है। अब मैं इस तरह करता हूँ, इस वाली रो को फिक्स कर देता हूँ। तो फिक्स किया, ये फिक्स में जो था 1 और 0 था। अगर आप इसको गायब करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास। अगर आप इसको गायब करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास। और अगर आप इसको गायब करेंगे तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आपने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया ये 4C -4 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, क्राइमर रूल इस्तेमाल करना है। क्राइमर रूल का हमारे पास फार्मूला है और फार्मूले के मुताबिक हमने क्या किया, ये हमने फार्मूला लिखा। ये इसका फार्मूला है ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए। फिर हमने किया यहाँ पे वैल्यू पुट की। तो सबसे पहले एक्स ए की वैल्यू आई हुई थी हमारे पास 3 थी, और उसके बाद ये वैल्यू भी आई हुई थी, इसकी जगह हमने 6 लिखा, इनको डिवाइड किया। इसी तरह एक्स बी की वैल्यू आई हुई है वो 1 है और इसकी दोबारा वैल्यू 6 ही आएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास -4 आई है अभी और इसकी वैल्यू 6 है। तो ये हमारे पास ए बी सी के आंसर आ गए। ए बी सी के आंसर आपने उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। कौन सी इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इक्वेशन इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। ये वाली जो सारी इक्वेशन है ये वाली, इसको हमने 1 कंसिडर किया हुआ है।
तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अगर आप उठा के इसमें पुट करेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आप इधर उठा के पुट करेंगे, यहाँ पे उठा के पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ये मैंने ए की वैल्यू पुट की, ये बी की वैल्यू पुट की और ये सी की वैल्यू पुट की। तो यहाँ डिवाइड में 2 है, इधर आ सकता है, इधर डिवाइड में 6 है, आप इसको इधर ला सकते हैं। और इसी तरह डिवाइड में 3 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया और उसके बाद ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर बाय यूजिंग क्राइमर रूल। अभी हम इसी आंसर को ज़रा फाइंड करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो वो जो आपका मैट्रिक्स था, आपने सबसे पहले उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। उसके बाद होना चाहिए था कि हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है जिसको पिवट एलिमेंट कहते हैं, तो ये फर्स्ट एंट्री हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट जो एंट्री है इसको मैंने 1 के बराबर था तो मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक -1 चाहिए जो 0 करके दे और यहाँ पे आपको एक +2 चाहिए जो इसको 0 करके दे। तो इन दोनों को 0 करना है। तो पहले क्या करना है, आपने इस वाली रो के साथ मल्टीप्लाई करना है -1 ताकि जो इस +1 के लिए क्या करे, 0 बनाए। तो ज़ाहिर है -1 है तो इस रो से क्या मल्टीप्लाई करूं, तो ज़ाहिर है बिल्कुल -1 मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इस रो के साथ -1 मल्टीप्लाई तो क्या करूंगा तो क्या आ जाएगा, -1, दूसरा -1, तीसरा -1, चौथा -0। ये 4 नंबर आते हैं। तो अब मैं ये 4 नंबर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। वो जो 4 नंबर आए हैं, एक -1 आ रहा है, दूसरा -1 आ रहा है, तीसरा -1 आ रहा है, चौथा -0 आ रहा है। तो ये नंबर मैं इधर पुट कर रहा हूँ। ये वाला नंबर उठा के इधर लिखा, ये वाला नंबर उठा के इधर लिखा, ये वाला नंबर उठा के इधर लिखा और ये वाला नंबर उठा के इधर लिखा। तो ये मेरे पास आ गया पहले के लिए। अब मैं इस तरह करता हूँ, इसी रो को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किसके साथ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो नंबर है -2 है, तो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि +2 आ जाए। 1 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि 2 आ जाए, +2 आ जाए। तो ज़ाहिर है आपको +2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसके साथ मतलब इस पूरी रो के साथ +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा +2, दूसरा आ जाएगा +2, तीसरा आ जाएगा +2, चौथा आ जाएगा +0। मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है उसके साथ, +2 मल्टीप्लाई किया। ये जो आंसर आए हैं मैंने उठा के इधर लिखे, ये वाला +2 इधर, ये वाला +2 इधर, ये वाला +2 इधर और ये जो +0 आया हुआ था ये वाला उठा के इधर लिखे। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सिंप्लीफाई करता हूँ। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा काम पूरा हो गया, ये 0 बन गया। 1 के जो कॉलम में जितने नंबर 0 होने चाहिए। अब हमारा दूसरा टास्क क्या है कि ये वाला जो 2 है, ये वाला 2, ये जो 2 है, ये वाला 2, ये 2, तो इस 2 को आपने 1 बनाना है। जब तक 1 नहीं बनेगा आप आगे नहीं चल सकते। तो आपने क्या करना है, इस पूरी रो को 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करें तो 0 डिवाइड बाई 2, ज़ाहिर है अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा आपके पास 0 डिवाइड बाई 2। सो 0 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0। फिर आपने किया 2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1, -1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो अब आपके पास ये बन गया जी 0, 1, -1 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2। अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर है यहाँ पे, जो नंबर है यहाँ पे आपने इसको क्या बनाना है, यहाँ पे नंबर को, ये तो 1 बन गए। अब आप 1 बन गया यहाँ पे। अब आपने 4 को 0 बनाना है। भला 4 कैसे 0 हो सकता है, दिस इज़ 4, इफ़ इट हैज़ -4 देन इट विल बी इक्वल टू 0। ये एक ही ऑप्शन है जो आप 0 बना सकते हैं। तो अब ये -4 भला कहाँ से आएगा, ये -4 इस 1, ये वाला 1 -4 बना के दे कि ये 1 बनाए इसलिए कि -4 बना के दे। तो अब आप इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -4 दे तो -4, तो -4 आपको इस पूरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा,
-0 पहले से मल्टीप्लाई करें, दूसरे से -4 तीसरे से मल्टीप्लाई करें। -4 को तो इट विल बी इक्वल टू 1 + 4 डिवाइड बाई 2 और चौथे से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 और इसको -4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 डिवाइड माइनस इंटू माइनस +4 डिवाइड बाई 2 और आखिरी नंबर को -4 से डिवाइड करें तो दैट इज़ इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2। तो अब आप क्या करेंगे, ये नंबर जाके ये पहला नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, दूसरा नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, तीसरा नंबर आपने इधर लिखना है, ये चौथा नंबर आपने इधर लिखना है। ये नंबर सारे आपने लिख लिए। अब आप इनका एलसीएम लें, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब आपको पास 3 है तो 3 भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। असूलन 3 तो नहीं होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। चले मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो आप इधर भी 3 के साथ डिवाइड कर दें, इधर भी 3 के साथ डिवाइड कर दें। तो इधर क्या आ जाएगा, जैसे ही 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा। नो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। जब आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो पहला आपके पास ये आ जाएगा 0A 0B 1C। 0A वो ख़त्म, 0B ख़त्म, 1C इज़ इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास पहला आंसर आया। अब आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में दूसरे नंबर पे जाएं तो दूसरे नंबर पे है 0A 1B -1/2C इज़ इक्वल टू 2। ये नज़र भी आ रही है, यहाँ से बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें की है तो ये बन गया। अब आप इस तरह करें, यहाँ पे C की वैल्यू ये C की वैल्यू इधर पुट कर लें तो ये C की वैल्यू पुट की गई, ये C की वैल्यू पुट की है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 3 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो आंसर आता है 1 डिवाइड बाई 6। तो ये आपने क्या किया, बी का आंसर फाइंड कर लिया। इसी तरह आप तीसरी इक्वेशन में जाएंगे, तीसरी इक्वेशन में तो सारों के पास 1 1 है तो ये हो जाएगा 1A + 1B + 1C इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास B की वैल्यू है, ये आपने पुट की, और C की वैल्यू है, ये आपने पुट की। वैल्यू पुट करके आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई किया तो -1 डिवाइड बाई 2 है, ये -1 डिवाइड बाई 2 इस तरफ जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ ABC। पुटिंग ABC इनटू अवर इक्वेशन नंबर 1। तो व्हाट इज अवर इक्वेशन नंबर 1? दिस वन इज अवर इक्वेशन नंबर 1। मैंने पहले ही बताया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसमें जाके आप ABC की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। तो दूसरी एग्जांपल में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाते तो सबसे पहले आपने देखना है कि इस क्वेश्चन में टाइप कौन सी चल रही है। तो इस क्वेश्चन में टाइप चल रही है, ये इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास टाइप चल रही है टाइप नंबर 3, क्योंकि डिवाइड में जो नंबर आ रहा है दैट इज़ क्वाड्रेटिक। अगर नंबर क्वाड्रेटिक है तो आपने उसको किस शक्ल में लिखना है, इस शक्ल में लिखना है। तो आपने लिखना है x² + 1 x² + 2 बिकॉज इट इज़ क्वाड्रेटिक सो इट कैन बी रिटन एज ax + b। इट इज़ आल्सो क्वाड्रेटिक सो इट इज़ रिटन एज cx + d। तो अब आपने क्या करना है, इस तरफ जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ जो नंबर है इसको इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अगर तीसरा नंबर होता तो उससे भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन तीसरा नंबर तो नहीं है, 2 ही नंबर हैं तो आपने मल्टीप्लाई किया। ये देखें, ये नंबर इस तरफ आके इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने देखा ये इस नंबर से कैंसिल हो रहा है तो आपके पास बाकी ये नंबर बच रहा है, और इसी तरह ये वाला x² ये x² से कैंसिल हो रहा है तो ये वाला नंबर बच गया।
अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये पहले एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद +2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। सिमिलरली पहले एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और फिर 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद हमने एक्स क्यूब वाले नंबर इकट्ठे लिख लिए हैं, एक्स स्क्वायर वाले नंबर इकट्ठे लिए, एक्स वाले इकट्ठे लिख लिए, जो बाकी बच गए उनको इकट्ठा लिखा है। तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, ये बन गई एक तरतीब बना ली हमने। अब हम कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स करेंगे। तो कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट करने के लिए एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे। पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे नंबर के कोफिशिएंट कंपेयर किए। तो इस नंबर को, ये जो नंबर लिखा गया है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए नहीं है तो 0a, बी है तो 1b, सी नहीं है तो 0c और डी है तो 1d विच वाज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब हम x1 वाला नंबर कंपेयर करेंगे। तो x1 वाला नंबर ये है, कंपेयर किया और इसको इस तरह लिख सकते हैं। और सिमिलरली फिर आखिरी नंबर कंपेयर किया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा गया तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है इस नंबर की, ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो आवर अगमेंटेड मैट्रिक्स इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो हमने क्या करना है, ये वाला जो 2 है इसको 0 बनाना है। तो अब इस 1 के साथ भला क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 2 0 हो जाए। तो ये 2 भला कैसे 0 हो सकता है, ये 2 है, अगर -2 हो तो ये तभी 0 हो सकते हैं, और तो कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये -2 लाने के लिए इस इक्वेशन के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2। तो अगर आप देखें, एक नंबर से तो नहीं मल्टीप्लाई करना ना, सारों के साथ आपने -2 मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसके साथ -2 मल्टीप्लाई करूँ, तो पहले के साथ -2 तो -2 हो जाएगा, दूसरे के साथ -2 तो क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा, तीसरे के साथ -2 तो ये -2 हो जाएगा, ये चौथा भी -0 और पांचवा भी -0। ये जो पांचों के पांचों जवाब आए हैं आपने इस वाली इक्वेशन में लिखने हैं सिर्फ। तो पहला -2 है तो आपने जाके वहाँ पे -2 लिखना है। दूसरा क्या है, -0 तो वहाँ पे जाके आपने -0 लिखना है। फिर -2 है तो वहाँ पे जाके आपने -2 लिखना है। फिर 0 है, फिर 0 है तो वहाँ पे जाके लिखना है। ये लिखने के बाद अब अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन की शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये हमारे पास अब मैट्रिक्स ने इस तरह की फॉर्म बना ली है। अब आपको क्या चाहिए था, नेक्स्ट नंबर 1 चाहिए था। तो ये ऑटोमेटिकली 1 हमारे पास ऑलरेडी 1 बना हुआ है। अब ये 1 बना हुआ है तो इसके कॉलम में सारे 0 होने चाहिए थे, लेकिन इसके कॉलम में सारे 0 नहीं है, ये 2 है, इस 2 को आपने 0 बनाना है। तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 2 है तो 2 के साथ -2 हो तो तभी 0 होता है। इसका मतलब है इस 1 के साथ अगर -2 मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला नंबर तब 0 के बराबर आएगा। तो -2 ज़ाहिर है फिर एक नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं होता, फिर आपको सारे नंबरों से इस पूरी इक्वेशन को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से। तो पहला -0, दूसरा -2, तीसरा -0, चौथा -2 और पांचवा -0। तो ये जवाब आए हैं, लिखने हैं। तो आपने क्या किया, पहला जवाब इधर लिखा, दूसरा जवाब इधर लिखा, तीसरा जवाब इधर लिखा, चौथा जवाब जो आया इधर लिखा, पांचवा जवाब जो इधर आया आपने यहाँ पे इसका पांचवा जवाब लिखा। पांचवा जवाब लिखने के बाद आपने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब इस इक्वेशन में इसका इस कॉलम का काम भी हो गया और इस कॉलम का काम भी हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपके पास ये जो एंट्री है आपको -1 नज़र आ रही है, तो ये 1 होनी चाहिए थी। तो इसको 1 बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको -1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते तो भी ठीक था। अब मैंने देखा यहाँ पे 1 बना हुआ है, तो मैंने इस दफ़ा इसको इसके साथ इंटरचेंज किया है। तो इंटरचेंज करने के बाद देखें मेरे पास क्या बचा, ये वाली पूरी इक्वेशन ऊपर आ गई। कहाँ पे आ गई, इस वाली लाइन में आ गई, 0 0 1 -2 एंड 1।
और जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, ये यहाँ डिवाइड में नेक्स्ट रो में आ गई। 0 0 देखें, 0 0 -1 0 एंड 0, ये रो हमने क्या की हैं, इंटरचेंज की हैं। अब आपको यहाँ पे आपको -1 है तो +1 हो तो ये इसको 0 करता है, वैसे तो 0 नहीं हो सकता। तो +1 कहाँ से लाएंगे, इस इक्वेशन के साथ अब मैं +1 मल्टीप्लाई करूँगा, इस वाली इक्वेशन के साथ मैं +1 मल्टीप्लाई करूँगा। तो जैसे ही मैंने +1 मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास इसके साथ +1 किया तो ये +0 आ गया पहला, और दूसरा भी +0 आ गया, और तीसरा मेरे पास +1 आ गया, चौथा मेरे पास -2 आ गया, और पांचवा मेरे पास फिर +1 आ गया। तो अब आपने आंसर लिखने हैं, ये पहला इधर लिखना है, दूसरा इधर लिखना है, तीसरा इधर लिखना है, चौथा इधर लिखना है, पांचवा इधर लिखना है। तो ये आपने पाँचों के पाँचों आंसर इधर लिखे, और लिखने के बाद आपने इनको सिंप्लीफाई किया। तो जैसे ही आपने इनको सिंप्लीफाई किया तो अब ये फॉर्म बन गई। अब यहाँ -2 भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस पूरी रो को अब -2 से डिवाइड किया। तो -2 डिवाइड बाई 0 0, -2 डिवाइड बाई 0 0, -2 डिवाइड बाई 0 0, -2 डिवाइड बाई -2 विच इज़ इक्वल टू 1, and 1 divided by -2 this is equal to 1 divided by -2। now backward substitution। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले आखिरी रो को कंसिडर करते हैं। तो अगर आप देखें आखिरी रो में तो क्या है, A0 B0 C0 D1, तो ये लिखा हुआ है A0 B0 0A 0B 0C 1D, दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2, सो D इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली आप दूसरी क्वेश्चन में यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या है, 0A 0B 1C एंड 1 -2 D इज इक्वल टू 1। तो C की वैल्यू, D की वैल्यू में पता है, D की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, यहाँ से उठा के D की वैल्यू इधर पुट की, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो C इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब हम इस तरह करेंगे कि लास्ट वाला जो इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट सेकंड रो है, अब यहाँ इसको लेके आएंगे तो 0A 1B 0C 1D एंड 0। अब A0 तो 0 हो जाएगा, C ऑलरेडी 0 हो जाएगा, D की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो इसके साथ ही हमारे पास B का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, आखिरी आंसर कैलकुलेट करना है। तो वापस हम पहली इक्वेशन के पास जाएंगे। अगर आप पहली इक्वेशन के पास जाएं तो पहली इक्वेशन क्या कहती है, पहली इक्वेशन में लिखा हुआ है 1A 0B 1C 0D इज इक्वल टू 0। तो D का आंसर पुट किया, और C का आंसर पुट किया, और B का आंसर पुट किया, ये तो सारे 0 आ रहे हैं। सो A इज इक्वल टू 0। पुटिंग दिस वैल्यू इनटू आवर इक्वेशन, तो जैसे ही हमने इसको इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको मैंने अपने आंसर को चेक किया तो मैंने देखा कि ये तो मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप एलसीएम लें, इसका एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के बाद वही आंसर आ जाए जो क्वेश्चन है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये डिवाइड बाय 2 नहीं था। तो ये हमारा आंसर गलत किस वजह से आ रहा है कि हमने कंपेयरिंग जहाँ जो की है, यहाँ पे हमने जो कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं, यहाँ पे इधर जो हमने कोफिशिएंट कंपेयर किया ना, ये हमें नज़र आ रहा है कि आखिरी D है जिसमें कांस्टेंट नहीं है, और दूसरा B है। 2B और D होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ D नहीं लिखा, C लिखा है। यहाँ पे D होता तो ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर आता। तो ये आगे चल के देखें, ये मैंने दोबारा उसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, और इस दफ़ा मैंने क्या किया है, उनको ठीक तरीके से कंपेयर किया है। अब क्योंकि पहले कंपेयर में मैंने D गलत लिखा था, इस दफ़ा मैंने उस D को सेट किया है। अब ये मेरे पास ये ठीक आ रहा है। ठीक आने के बाद मैंने वही प्रोसीजर रिपीट किया है सबके लिए। प्रोसीजर रिपीट करने के बाद मैंने देखा है कि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। तो D का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ये D का आंसर। और हमारे पास, और नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है किसका आंसर, D का आंसर आ गया, और B का आंसर 1 आ रहा है। तो B का आंसर 1 निकाल लिया,
और बाकी आंसर हमारे पास सी और ए 0 आ गए। तो इसको दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये फॉर्म बनी। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद बिल्कुल हमारा वही आंसर आया जो हमारे पास क्वेश्चन में। तो बच्चों इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन का हर सवाल जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बने रहें और क्वेश्चन वगैरह हल करने की कोशिश करते रहें। तो मैं इस तरह करता हूँ, आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर लें। होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देता हूँ, लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें भी आपके पास ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और डी भी आएगा। तो आपने ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है। ये सारा ये सारा मेरे पास ये लिखा होगा, सही नहीं तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन घर से करना है। क्वेश्चन इस तरह लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये अब आप लोगों के लिए होमवर्क है और आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।